کرسمس کے حوالے سے ملتان میں کرسمس کا تہوار بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ چرچز میں مسیحی برادری کی جانب سے عبادت کی گئی۔ میتھوڈسٹ چرچ میں کیک بھی کاٹا گیا۔ سید زہیب بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر کی طرح ملتان میں بھی کرسمس کی خوشیاں منائی گئیں۔ چرچز میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر میتھوڈسٹ چرچ میں کیک بھی کاٹا گیا۔ ہم سب مل کر اس تہوار کو مناتے ہیں اور اس تہوار کا مقصد بھی یہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم سب مل کر رہیں اور مل جل کر خوشیاں بانٹیں، اور وہ اس لیے آیا تاکہ ہم غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ ماڈریٹر عاشر کامران کا کہنا تھا کہ اجتماعی عبادات کا مقصد بھائی چارہ ہے۔ مسیحی برادری کے لیے آج سب سے بڑا دن ہے۔ ہم سبھی آج تہ دل سے خداوند کا شکر گزار ہیں، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں صحت دی، تاکہ ہم آزادی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اپنے چرچ میں آ کر اس کو سیدھا کر سکیں اور اس کی پیدائش کا دن سالگرہ بنا سکیں۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم اے ڈی نواز کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی کرسمس کا تہوار بھرپور انداز میں منایا گیا۔ گڈ نیوز چرچ اور سینٹ اینتھونی یونائٹڈ چرچ میں تقریبات منعقد کی گئی۔ عامر اشفاق کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ گڈ نیوز چرچ میں عبادات کی گئی۔ مسیحی برادری نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ سینٹ اینتھونی یونائٹڈ چرچ میں کرسمس کی تقریب ہوئی۔ ایم این اے زرتاج گل اور ایم پی اے حنیف پتافی نے شرکت کی اور کیک بھی کاٹا۔ 25 دسمبر پوری دنیا میں مسیحی برادری کرسمس کی جہاں پہ خوشیاں منا رہی ہے، اسی طرح یہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں بھی ایم این اے زرتاج گل صاحبہ اور میں یہاں پہ ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ کیک بھی کاٹا ہے اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے۔ تو پاکستان میں جس طرح مسلمانوں کو اپنی مذہبی رسومات کی کھلی اجازت ہے، اسی طرح اقلیتوں کو بھی کھلی اجازت ہے۔ تو آج ہم مسیحی برادریوں کو خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں۔ جی، ایم این اے زرتاج گل کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ ہم اپنے جتنے بھی مسیحی بھائی ہیں یہاں پہ، ہم ان کے ساتھ ایک ہی پیغام کے ساتھ آئے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں تو الحمدللہ ویسے بھی ہم بڑا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کے ساتھ اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے رہتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قائد ڈے بھی ہے، اس کے پیغام سے ان کو پیغام یہ دیا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہی پاکستان ہم نے بنانا ہے، وہی جو انہوں نے اقلیتوں کو بھی حقوق دیے تھے اور ہمیں بھی حقوق دیے تھے۔ کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ پاکستان بھر میں کرسمس کا تہوار بھرپور انداز میں منایا گیا۔ مختلف گرجا گھروں میں عبادات، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ مزید اس میں رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح خوشاب میں کرسمس کا تہوار عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ سینٹ ٹریزا کیتھولک چرچ میں عبادت، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جارج فادر کا کہنا تھا کہ یہ دن امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ جہانیہ میں بھی کرسمس کا تہوار جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تمام چرچز میں تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ساری ہماری کمیونٹی بہت خوش ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں پہ ساری کمیونٹیز ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمیں اس چیز کی آزادی دی گئی ہے۔ تو ہم لوگ اپنے پاکستان کے لیے بہت شکر گزار ہیں اور ہماری ساری مسیحی کمیونٹی کو میری طرف سے ہیپی کرسمس۔ صادقہ آباد میں بھی کرسمس کی خوشیاں بھرپور انداز میں منائی گئیں۔ مختلف چرچز میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں اور بڑوں نے مل کر کرسمس کا کیک کاٹا۔ بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ کرسمس سلامتی اور خوشیوں کا دن ہے۔ کہرول پکا کی مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ چرچ بیت ایل میں دعائیں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بچیوں نے چوڑیاں پہنی اور مہندی لگوائی۔ چرچز کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ مکمل مذہبی آزادی پر وہ پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ میری طرف سے تمام مسیحیوں کو بڑا دن مبارک ہو، اور یہ کرسمس ہمارے لیے امن، خوشی اور سلامتی کا پیغام لاتا ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہم اپنے تمام تہوار جو ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔
लिया में क्रिसमस का त्यौहार जोशो जज्बे से मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मसीही बिरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा। मरकजी तकरीब चक 270 के चर्च में हुई। डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक और डॉक्टर निदा फरहत का कहना था कि वो खुशी के मौके पर मसीही बिरादरी के साथ हैं। डिप्टी कमिश्नर ने फतेहपुर के चर्च में भी शिरकत की। चिश्तिया में भी क्रिसमस की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाई गयी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पादरी मुरक्कस का कहना था, क्रिसमस अमन का पैगाम लेकर आता है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे। एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अनवर कमियाना ने चर्च का दौरा किया। दुनिया के लिए खुशी का ये दिन है और हम अपनी मसीही बिरादरी के साथ और बाकी सब के साथ मिलकर आज का दिन ये बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, खुदा पाकिस्तान को और तमाम मसीहियों को और बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में रहती हैं उनको सलामती और खुशहाली बख्शे। बुरेवाला में भी क्रिसमस मजहबी जोशो जज्बे से मनाया गया। तहसील भर के चर्चेज में इबादत की गयी। मरकजी तकरीब सेंट पीटर्स कैथोलिक चर्च याकूब आबाद में हुई। इबादत के इख्तिताम पर केक काटे गए, तोहफे तकसीम किए गए। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। खानेवाल के सिविल लाइन चर्च में क्रिसमस का केक काटा गया। सियासी रहनुमा मियां जावेद अराई ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। फादर का कहना था कि क्रिसमस अमन, प्यार और मोहब्बत का पैगाम है। रहीम यार खान की मसीह बिरादरी ने खुशियों भरा क्रिसमस त्यौहार मनाया। मुस्लिम लीग नून के जिली जनरल सेक्रेटरी मियां इम्तियाज अहमद और लीगी कायदीन ने मसीह भाइयों के साथ मिलकर केक भी काटा। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। यार खान में क्रिसमस का त्यौहार जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब में साबिक एमएनए व जिली जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मियां इम्तियाज अहमद और मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई और केक काटा। जिली जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि क्रिसमस के त्यौहार में शामिल होकर खुशी हुई। सब हिलाली परचम के साए तले तमाम मजाहिब के लोग मुत्तहद हैं। मसीही बिरादरी का कहना था कि क्रिसमस मोहब्बत, अमन, खुशी और इबादत का त्यौहार है। हमें इंतहाई खुशी हुई कि हम अपने क्रिश्चियन बरादरी के साथ आज ईद का केक काटा है हमने। अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्कियां दे और इनकी ईद की खुशियों को दुबाला करे। जितने भी हमारे मुस्लिम लीग के वर्कर हैं उन सब का शुक्रगुजार हूं कि हमारी क्रिसमस की खुशियों में ये हमारे साथ शरीक हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से पूरी पाकिस्तान के मसीह कौम के क्रिश्चियनों को हैप्पी क्रिसमस और नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक हो। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती व खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी की गयी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान में क्रिसमस की खुशियां उरूज पर मसीही बिरादरी की जानिब से मुख्तलिफ पकवानों की तैयारियां जारी। बच्चों और बड़ों के मजे ईदी लेने और देने का सिलसिला भी जारी है। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मसीही बिरादरी ने घरों में मजे मजे के पकवान तैयार किए। फिर खवातीन, बच्चों और बड़ों ने खूब हाथ साफ करके क्रिसमस की खुशियाँ मनाई। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हज़रत ईसा की विलादत है और पूरी दुनिया में अमन का पैगाम हम देते हैं। आज हमारे घर में मेरी बहनें आई हुई हैं, ठीक है, और बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा रश है। मैं सारे बच्चों को जो है ईदी भी दी है मैंने, और सारा जो है ना आज का माहौल बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में हमें भरपूर आज़ादी है, अपना हमें मजहबी आज़ादी है। हम झूले झूलते हैं, पकवान बनवाते हैं और इसके अलावा जितने इवेंट हैं, रात हमने एक इस्लाही ड्रामा भी किया है। अभी इबादत से फारग हुए हैं। खवातीन का कहना था कि वो एक हफ्ते से खरीदारी में मसरूफ थीं। आज तैयार होकर पकवान बनाए हैं। इस मौके पर ईदी लेने और देने का सिलसिला भी जारी रहा। क्रिसमस का त्यौहार साल में एक बार आता है, खूब जोशो जज्बे से मना रहे हैं। बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत अच्छा लगा। आज हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा ईदी मिली और शॉपिंग करने का बहुत मजा आया। और शॉपिंग हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा के की है। आज हमने क्रिसमस का सेलिब्रेट किया तो फिर हमें ईदी भी मिली है, तो फिर हम शाम को हम बाहर घूमने भी जाएंगे। आज हमने क्रिसमस बनाया तो शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाऊंगा। नन्हे बच्चों का कहना था कि इन्होंने बहुत सारी ईदी जमा कर ली है, अब खर्च करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान की मसीह बिरादरी ने क्रिसमस मनाने के बाद तफरीह मकामात का रुख कर लिया। छुट्टी के रोज को खूब एंजॉय किया। बच्चों और बड़ों ने संडे को फंडे बना दिया। हसन मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मनाने के बाद तफरीही मकामात पर पहुंच गई। छुट्टी के रोज को खूब इंजॉय किया। शहरियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट अक़लियतों के लिए बाइसे फख्र हैं। ये बड़ी खूबसूरत रवायत इन्होंने बनाई है और हम यहाँ आकर बहुत बहुत खुश हैं और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, कामरानी दे। आज का दिन सबसे पहले हमने चर्च में गुजारा है, उसके बाद हम DHA में आ गए हैं जहाँ पे एक बहुत अच्छी तकरीब इन्होंने की हुई थी और इसमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। हमें कभी फील ही नहीं हुआ ओवरऑल
कि we are the part of minority, we are the part of majority because we are the Pakistani. बच्चों, बड़ों और खवातीन समेत सब ने छुट्टी का दिन बाहर गुजारा। मसीही बिरादरी का कहना था कि अक़लियतों के लिए पाकिस्तान महफूज मुल्क है। हुकूमत और इंतजामिया ने बहुत ताउन किया। बतौर पाकिस्तानी हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि तमाम मज़ाहिब को पाकिस्तान में आज़ादी के साथ अपने मजहबी त्यौहार मनाने की भरपूर इजाज़त है। बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा है कि हम अपने क्रिश्चियन फ्रेंड्स के साथ ये दिन मनाएं। अल्लाह ताला सबको खुशियां दे और हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं हैं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हमारा फ्लैग है वो ग्रीन और वाइट इसी बात की निशानदेही करता है कि हम सारे एक साथ हैं, एक परचम के साए तले एक हैं। मसीही बिरादरी का कहना था कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। मुल्तानियों ने मोहब्बत का सबूत दिया है। संडे को भरपूर इंजॉय करने आए हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। दुनियापुर और गिरदो नवा में धुंध का सिलसिला जारी। धुंध की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। नेशनल हाईवे रोड पर धुंध से ट्रैफिक सुस्ती का शिकार। ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट जारी। एहतियात से ड्राइविंग की हिदायत। धुंध की वजह से गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ट्रैफिक पुलिस सफर जरूरी हो तो फौरन लाइट्स का इस्तेमाल करे। ट्रैफिक पुलिस आपको बता रहे हैं दुनियापुर और गिरदोनवा में धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई। नेशनल हाईवे रोड पर धुंध से ट्रैफिक सुस्ती का शिकार। ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट जारी। एहतियात से ड्राइविंग की हिदायत। धुंध की वजह से गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, ऐसा कहना है ट्रैफिक पुलिस का। सफर जरूरी हो तो फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। दुनियापुर और गिरदो नवा में धुंध का सिलसिला जारी। धुंध की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। नेशनल हाईवे रोड पर धुंध से ट्रैफिक सुस्ती का शिकार। ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट जारी। एहतियात से ड्राइविंग की हिदायत। धुंध की वजह से गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ट्रैफिक पुलिस सफर जरूरी हो तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करे। ट्रैफिक पुलिस का ऐसा कहना है कि दुनियापुर और गिरदो नवा में धुंध का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है धुंध की वजह से गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सफर जरूरी हो तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। दुनियापुर और गिरदो नवा में धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। अलीपुर में धुंध का राज। शहर और मज़ाफाती इलाके शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस सदनिगाह 5 मीटर तक रह गई है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें। शहरी सफर के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। शहरी सफर के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। अलीपुर में धुंध का राज। शहर और मज़ाफाती इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बायस सदनिगाह 5 मीटर तक कारगाह है। अलीपुर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें। पेट्रोलिंग पुलिस शहरी सफर के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करे। मुल्तान में सर्दियों के फूल खिल उठे। पीएचए के जेर इंतजाम गुले दाऊदी के नुमाइश का तीसरा रोज इब्ने कासिम पार्क में रंग बिरंगे फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज। मुख्तलिफ रंगों वाले 18,000 से ज्यादा फूल नुमाइश में पेश। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के जेर इंतजाम आज गुले दाऊदी की नुमाइश का आखिरी दिन है। शदीद सर्द मौसम में इब्ने कासिम पार्क में खिले रंग बिरंगे फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। गुले दाऊदी की 3 रोजा नुमाइश में मुख्तलिफ रंगों वाले 18,000 से ज्यादा फूल पेश किए गए। बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी के मौसम में भी गुले दाऊदी के फूल देख के बहुत मजा आ रहा है और सर्दी का मौसम है, एंजॉय हो रहा है। बच्चे भी आए हुए हैं, काफी शायकीन देखने के लिए आए हुए हैं। बस जी, शहरियों का कहना था कि नुमाइश में रंग बिरंगे फूल देखकर खुशी हो रही है। सर्दी की शिद्दत में खूबसूरत फूलों ने मंजर दिलकश बना दिया। हम आए हैं बाबरपिंडी से, गुले दाऊद के फूल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम फूल देखने आए हैं। तो ठंड भी बहुत है, काफी एंजॉय किया है, बहुत अच्छा लग रहा है फूल देख के। नौजवान गुले दाऊदी के फूलों के साथ सेल्फियां भी बनाते दिखाई दिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। दिसंबर की सर्दी में मुल्तानियों के खाने पीने के अंदाज भी निराले। ठंड बढ़ते ही शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। किसी ने चटपटे समोसे खाए तो कोई गर्मा गर्म जलेबियों पर हाथ साफ करता दिखाई दिया। इस मौका पर शहरियों ने मनपसंद खाने के साथ साथ मौसम को भी खूब एंजॉय किया। सैयद ज़ोहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखते हैं।
शहर मुल्तान में सर्दी बढ़ी तो शहरियों ने मौसम का मजा दुबाला करने के लिए समोसा पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी फैमिलीज के हमरा गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खाने में मसरूफ दिखाई दिए। मैंने सोन हलवा भी खाया है और ये जलेबी वगैरह ये चीज़ें जो खाई हैं ना, माशाल्लाह ये जलेबी का टेस्ट ही अलग है और फिर समोसा सुबह सुबह खाने में अलग ही मजा है। बहुत मजे की चीजें यहाँ पर मिलती है। यहाँ समोसे जलेबी भी बहुत मजे की होती हैं। सुबह सुबह खाने का अपना ही टेस्ट होता है। शहरियों का कहना था कि दिसंबर की सर्दी में गर्मा गर्म समोसे खाने का अपना ही मजा है, इसलिए अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ समोसे और जलेबी खाने आए हैं। खास तौर पर सर्दी के मौसम में जलेबी और समोसे का तो क्या ही कहने, और अभी जो है मैं खास तौर पर सर्दी के मौसम में जलेबी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि गरम गरम जलेबी जो है वो सर्दी का एक बेहतरीन तोहफा है। शहरियों का मजीद कहना था कि ऐसे सुहाने मौसम में वो खुद भी समोसे खाकर जाते हैं और घर वालों के लिए भी लेकर जाते हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दी में गरम गरम समोसे और जलेबी खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। संडे बन गया फंडे। सर्दी में इजाफा हुआ तो मुल्तानियों ने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी कंड बाजार में मनपसंद नाश्ता करने मसरूफ। किसी ने किए गर्मा गर्म नान के साथ सिरी पाए पर हाथ साफ तो कोई निहारी का बतलाशी रहा। देखते हैं अली रियाज की रिपोर्ट। के रोज मुल्तान के बासी बाहर से नाश्ता ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने कैंट बाजार में नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां शहरी मनपसंद देसी नाश्ता करने में मसरूफ दिखाई दिए। एक तरफ मुल्तानी गर्मा गर्म सिरी पाए पर हाथ साफ करते दिखाई दिए तो वहीं अपने अहले खाना के लिए निहारी भी खरीदते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि मौसम आज सर्द है, इसलिए नाश्ता खरीदने आए हैं। संडे को निकलना चाहिए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जरा एक्साइटमेंट भी हो जाती है। और जॉबियन वाला बंदा, जो जॉब वाला बंदा है, उसके लिए तो और ज़्यादा है कि बच्चों को टाइम दे, और वो संडे का एक बहाना होता है नाश्ते का, इसलिए निकलते हैं। शहरियों का कहना था कि इतवार के रोज कोशिश होती है कि नाश्ता बाहर से किया जाए, इसलिए यहाँ निहारी खरीदने आए हैं। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट है जी इनका, और खासकर ये नली निहारी और ये दूसरी सादा निहारी जो है बहुत ज़बरदस्त है इनकी। कैंट बाजार में नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश दिखाई दिया, दुकानदारों की भी खूब चांदी हुई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।